The first one is experiment. What वैसे बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी इवेंट की? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? हम्म इट इज बेसिकली चांसेस ऑफ अकरेंस, है ना? हाँ, वो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, बट चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, राइट? काव्य, क्या हुआ तुम आज क्यों नहीं आए तुम? सर मैं गाड़ी में हुआ, अबाउट टू रीच। ठीक है। सो probability of an event is chances of occurrence of a particular event. Now, experiment. What is an experiment? If you toss a coin, or you throw a dice, or you toss two coins together, three coins together, so that's called experiment. So, experiment को कैसे define करोगे? Any activity, लिख लो, any activity like tossing a coin, throwing a dice, etc., is called experiment, and its outcome is not known to us, or its outcome is not predetermined, or and its outcome is not predetermined. अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो हमें मालूम नहीं कि हेड आएगा टेल्स आएगा. इफ यू थ्रो अ डाइस वी डोंट नो कि 1 2 3 4 5 6 में से क्या आएगा. सो एनी एक्टिविटी, random activity in which outcome is not predetermined is called experiment. Then you have sample space. Sample space क्या होगा? It is the set of all the outcomes in a given experiment. It is it is set of all the outcomes in a given experiment. Set of all outcomes in a given experiment. It is represented by S. Yeah. जैसे कि if you throw a dice, outcomes का sample space क्या होगा? 1 2 3 4 5 6. If you toss two coins together, set of outcomes would be HH, HT, TH, TT. So this is the sample space. Third is event. What is event? An activity which is subset of a given experiment. An activity which is subset of a given experiment. Subset of a given experiment. जैसे कि in case of throwing a dice, if you throw a dice, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? बहुत सारी इवेंट हो सकती है, जैसे कि I define some event that number is prime. Experiment. I can define another activity. Number is more than 5, or number is even. All these are activities which are subset of a given experiment. तो अगर एक्टिविटी नंबर इज प्राइम तो उसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? कौन कौन से नंबर प्राइम आते हैं इसमें? 2 3 5. नंबर मोर देन 5 क्या होगा? 6. Number is even will be 2 4 6. Another activity say D. Number is odd, हो जाएगा 1 3 5. Another activity
number is more than 6, it would be a null set. Another activity, number lies between 0 and 7. तो ये पूरा का पूरा सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. All these are activities which are basically subset of the given experiment. नेक्स्ट लिखो, सिंपल इवेंट. लिख लोगे तो अच्छा रहेगा. क्या वो मन नहीं है लिखने का? लिख लो. सिंपल सिंपल इवेंट. What is simple event? Simple event is that event which has only one outcome. Simple event has only one sample point or one outcome. तो जो मैंने सारी ये लिखी हुई है इसमें, उसमें से कौन सी सिंपल इवेंट लग रही है तुम्हें? B. So over here B is simple event because it has only one outcome. Event which has only one sample point or one outcome is simple event. Example is compound event. What is compound event? Event which has more than one sample point or one more than one outcome. Event which has more than event which has more than one outcome is called compound event. Next लिखो mutually exclusive events. Hmm. Two or more events are said to be mutually exclusive. Two or more events are said to be mutually exclusive if if they have nothing in common, or second definition लिखो, two or more events, two or more events which cannot occur together, two or more events which cannot occur together, two or more event which cannot occur together are called म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. तो यहाँ बताओ मुझे कौन कौन सी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. और ये तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना? ए एंड बी भी हैं. हाँ, ये तो नल है वैसे भी. सो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सारे कौन से? ई.
देखो नल सेट जो होता है वो तो सबके साथ उसका इंटरसेक्शन नल सेट ही आता है ना। हाँ। एग्जॉस्टिव लिखो नेक्स्ट। विच इज सबसेट ऑफ ए गिवन एक्सपेरिमेंट। एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हुआ? एग्जॉस्टिव, टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव if the union equals to sample space. Two or more events are said to be exhaustive if their union is sample space. तो इवेंट्स का अगर सैम्पल स्पेस, इफ द यूनियन इज सैम्पल स्पेस इक्वल्स टू सैम्पल स्पेस, वही एक्सपेरिमेंट का। जैसे यहाँ पे देखो, ए और बी एग्जॉस्टिव नहीं है लेकिन सी एंड डी एग्जॉस्टिव भी है, एक्सक्लूसिव, बिकॉज इन दोनों का यूनियन इसके बराबर है। देन एफ तो डी के साथ एग्जॉस्टिव है, ई के साथ भी एग्जॉस्टिव है, ये खुद ही एग्जॉस्टिव है। इट इज सेल्फ। हाँ। तो अब ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज खोलो, स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 20, सारे सैंपल्स पे भी बेस्ड क्वेश्चन हैं। आंसर, राइट सैंपल स्पेस एंड सी योर आंसर द बैक ऑफ दो। 1 to 20, 1 से लेके 20 तक सारे। नहीं, सारे उसके हैं ये सैंपल स्पेस के। हम्म। मतलब उनका, हाँ, मतलब उनका यूनियन दो और दो से ज्यादा, उनका यूनियन एस हो जाएगा और आपस में नथिंग विल बी इन कॉमन। अभी आएंगे क्वेश्चन उस टाइप के भी। हाँ हाँ। क्या बात कर रहे हो? टोटल क्वेश्चन कितने जरा देखो प्रोबेबिलिटी में। ज्यादा ही तो होते हैं। ये तो मैं उसको बता रहा था कि एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। ये मानती है। हम्म। हाँ। कैसे? तो उनको B1 B2 करो ना। हाँ। हाँ हाँ। देखो बॉयज को तुम ले लो B1 B2 B3, अगर तीन है, दो है तो B1 B2 ले लो। नहीं, B1 B2, गर्ल को ले लो G1 G2 G3 whatever। राइट। हाँ तो सैम्पल क्वेश्चन क्या है? टू चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड ना। कितने लोग हैं बताओ मुझे बिगनिंग में? यू आर सिलेक्टिंग ऑल्सो। हाँ तो लॉट क्या, क्या क्वेश्चन, क्या पढ़ के सुनाओ मुझे। क्या था क्वेश्चन? हाँ, इसका मतलब वी हैव सैम्पल स्पेस जो इनिशियली है वो है B1 B2, और कितनी गर्ल्स हैं? ये है। अब क्या कर रहे हैं? अगर होता किसी फैमिली में तीन लड़कियां दो लड़कियां तो ये सैम्पल स्पेस था। बट द क्वेश्चन इज डिफरेंट, क्वेश्चन इज, यस,
तो अगर दो किट सेलेक्टेड है तो मतलब B1 B2 हो सकता है, B1 G1 हो सकता है। हाँ, ये सारा लिखना है तुम्हें। यस। सिलेक्शन है तो B1 B2 और B2 B1 सेम होगा, उसमें ऑर्डर फिर से वर्क नहीं पड़ेगा। ये सारा लिखना है तुम्हें। फिर सिमिलरली B2 G1 B2 G2 B2 G3। फिर उसके बाद G1 G2 G1 G3। एंड सिलेक्शन है ना, तो उल्टा नहीं ले सकते। इट इज सिलेक्शन, दे आर नॉट बीइंग अरेंज्ड। दे आर नॉट बीइंग अरेंज्ड, दे आर बीइंग सेलेक्टेड। सिलेक्शन में ऑर्डर इज इमटेरियल। कितने बन गए? 5C2, 10 बनेंगे। फिर 5 लोगों में से दो सेलेक्ट करो, 5C2, सिंपल। कॉम्पिटिशन कर चुके हो तुम ऑलरेडी। 5C2 इज 10। एक बार B1 फिक्स कर लो, उसके बाद फिर करते जाओ। क्या कर रहे हो तुम? मम्मी की याद है? मम्मी के खाने की याद आ रही है? फिर भी वो गुस्से तो करती है, देखती तो है क्या। अब क्या होगा? कर लो, क्वेश्चन कर लो। माइक ऑफ हो गया। मुझे आपकी आवाज क्या कुछ बोल रही हूँ। हाँ दिव्या। ओके। क्या? नेक्स्ट हम्म। 2 में हम्म। क्या आप एच और टी और एच को अलग मानोगे? नहीं, हाँ, दे विल बी डिफरेंट, यस। बिकॉज पहले टॉस में क्या आ रहा है, सेकंड में क्या, दे डिफरेंट। हम्म। आओ, सेकंड थर्ड दोनों कर दो। वो कभी कभी तुम आती हो क्लास में तो देखो। तुम्हें करना है नेक्स्ट। हम्म। ओ, यहाँ तो आंसर लिखो, क्लब करो ना, क्लबिंग कर दो। 1HH।
कर लो इसको। करो क्वेश्चन। सेकंड कर रही है। तुम्हारा मोबाइल का है। गुड। ये बहुत अच्छी लड़की है। वेरी गुड गर्ल। मोबाइल अंदर रखती है। नेक्स्ट पे कर दो। क्यों समझ में नहीं आ रहा है इसमें? यू हैव टू रीड इट ना, थोड़ा दिमाग को पुश करो। हम्म। नहीं, हाँ वही तो सही तो था वो। वही तो हो रहा है अल्टीमेटली, ये तो आंसर है। क्या? नहीं तो फिर क्या किया? दो के बाद क्या करोगे तुम? ठीक है, दो के बाद क्या करोगे? देन यू टॉस कॉइन टू टाइम्स। तो टू टाइम्स में क्या आ सकता है? एच एस आ सकता है, एच टी आ सकता है, टी एच। तो कॉइन को तुम डाइस कैसे ले सकती हो? नहीं, वो नहीं। 4 और 5 दोनों करने हैं। 4 और 5 दोनों करोगे? तो अगर तुम ये नहीं भी लिखो तब भी चलता है। फोर्थ में तो बहुत सारे। हाँ, तो जब बहुत सारे होते हैं तो मैथ्स में उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। और जब इसको मैथ्स में इन्फिनिटी बोलते हैं, डॉट डॉट लगा देते हैं। तो पर बहुत कम तो बहुत कम हो जाते हैं फिर वो। उनमें पीछे बहुत सारे लिखे हुए हैं। कोई बात। ये क्या था? अच्छा। हम्म। हाँ, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में मतलब 1 1 नहीं आ सकता, 2 2 नहीं आ सकता, 3 3 नहीं आ सकता ना। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर लिखो। क्वेश्चन नंबर तो लिख दो। और फोर्थ में सारे लिखो। 4 में सारे? लिखो। क्या है क्वेश्चन? पढ़ो एक बार। A coin is tossed. If the result is a head, a die is thrown. If the die shows up an even number, then the die is thrown again. ओके। तो एक टेल्स हो गया, एक हेड हो गया और ऑड हो गया हाँ एक। ठीक है, ठीक है। इट्स नॉट इनफाइनाइट, यू कैन राइट दम। लिखने पड़ेंगे सारे। राइट दम ऑल। इतने सारे ब्रैकेट मत लगाओ, कॉमा लगा के एक ही ब्रैकेट लगता है। मैंने लिखना है उसको। हाँ लिखो। और डोंट राइट सो मेनी ब्रैकेट्स, एक ही ब्रैकेट लगाना है, सैम्पल्स में कॉमा लगा दो बस। नहीं नहीं, H2 2, H2 3 लाइक दैट। H2 1 के बाद H2 2 आएगा। ब्रैकेट नहीं लगाना, वो तो बोल रहा हूँ, दूसरा स्मॉल ब्रैकेट लगाओ। सैम्पल्स में एक ही बार लिखते हैं ये तो यहाँ पे लगेगा ब्रैकेट ये। कर लो अब। लिखना है ना। हम्म। और भी तो बनेंगे। 1 के साथ 2 आ गया, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5। 5 नहीं, एक रिजल्ट ही होगा। हाँ, उसके बाद ये भी तो आ सकता है कि तुमने पहली जो स्लिप निकाली उसमें 2 आ जाए। 2 के साथ। हाँ।
हम्म बिकॉज वन बाय वन करो तो ऑर्डर मैटर करेगा ना तो उसमें तो। देखो इसमें क्या है, वही होगा। सारे ही है, बिकॉज वन बाय वन ड्रॉ कर रहे हो ना तो ऑर्डर मैटर करेगा कि पहली बार में क्या आ रहा है, दूसरी बार में क्या आ रहा है। तुम्हारे बोर्ड छोटा पड़ जाएगा ये। फोर्थ का उन्होंने पीछे गलत लिखा है। क्या लिखा है? उन्होंने एक चीज दो बार किया है और मैं इतनी देर से 22 22 काउंट कर रही हूँ बट उन्होंने पीछे 23 दिया। हाँ ठीक, गलत होगा, ठीक है। कितने आगे इसमें आउटकम, काउंट करना है एक बार। फोर्थ में 22। सिर्फ टी सिंगल आएगा, बाकी तो सारे। टेल का तो एक बार आ गया ना, टेल में इसने बोला है कि एक बार लिखना है, टेल आने के बाद दैट्स इट। हम्म जैसे हेड सिक्स आएगा यू हैव टू स्टॉप। हाँ हेड आएगा। टी आ गया, टी, हाँ 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 हाँ। एच वुड बी द लास्ट। हाँ। कौन से, ये वाला, ये तो गलत है तुम्हारा। ये जो नीचे लिखा है तो गलत किया ना, नहीं क्या किया है? रीड द क्वेश्चन। फिफ्थ करो। 2 क्यूब 8 आएगा इसमें ना। एक कॉइन में दो आउटकम होती है, 3 बार में 2 क्यूब हो जाएगा तो 8 आउटकम्स आते हैं। 4 वाले में होगा 16 तो, 4 का ही है। हाँ तो उसको ऐसे मत करो, इसका एक तरीका होता है। यू राइट एच 8 टाइम्स, यू राइट टी एच 8 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद यू राइट एच 4 टाइम्स, 4 टाइम्स टी, 4 टाइम्स एस, 4 टाइम्स टी। थर्ड रो में यू राइट 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स एस, लाइक दैट। एंड एंड में एच टी एच टी एच टी, सारा अच्छा बन जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। हम्म ठीक है। हाँ, it says that the moment you get heads you stop। है, तो अभी तो आई हो तुम, तो तुम आई क्यों थी फिर? ठीक है, मोबाइल ले जाना है तुम्हें? ठीक है, वही ना, टाइम बचेगा तुम्हारा काफी। हो गया? कौन सा था वो? तुम कौन सा कर रही हो? 7 8 कर दो दृष्टि बोर्ड पे। नेक्स्ट पेज पे कर लो। फिफ्थ तो सिंपल सा है, 2 कॉइन्स है ना। कॉइन इज टॉस रिपीटेडली अंटिल हेड कम्स, तुम तो एच आ गया तो तुम रुक गए। लेकिन ये भी तो हो सकता है हेड ना आए, पहली बार टी आ जाए तो दोबारा करोगे। देन टी एच, देन टी टी एच। हाँ इनफाइनाइट, छोड़ दो डॉट डॉट।
नहीं, इफ यू टॉस अ क्वाइन, सिंगल क्वाइन दो आउटकम होती हैं. So if you toss two coins together, there'll be 2 into 2, 4 outcomes. If you toss three coins together, it'll be 2 cube, 8 outcomes. Four coins together, 2 raised to power 4, 16 outcomes. तो 16 आउटकम के लिए एक तरीका होता है कि पहले तुम एच 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 8 बार लिख लो और एच 8 बार टी 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 लिख लो. सेकेंड रो में यू राइट एच 4 टाइम्स, टी 4 टाइम्स. बहुत लंबा कर रही हो, बहुत लंबा कर रही हो, ऐसे मत करो, मिस हो जाएगा कुछ ना कुछ. इसका बेटर मेथड वो होता है, एच को 8 बार लिखो. हाँ, you write H 8 times, you write T H times, then you write H 4 times, T 4 times, that way, alternately. हाँ. हाँ, तो इसमें हम क्या किया हमने, H को लिखा 8 टाइम्स, T को 8 टाइम्स. उसके बाद H 4 टाइम्स, T 4 टाइम्स, H 4 टाइम्स, T 4 टाइम्स. नेक्स्ट में H T T 2 टाइम्स, 2 टाइम्स. एंड द लास्ट ऑल्टरनेटली यू राइट H T. अगर डाइस थ्रो कर रहे हैं तो हम्म. 1 2 और 2 1 अलग अलग होगा। यस, देखो फर्स्ट आउटकम एंड सेकंड आउटकम है ना, तो ऑर्डर विल मैटर. हम्म. हाँ. हम्म. इन वन डाई विल बी 6 आउटकम्स. इसको ऐसे तो बहुत नहीं कर पाओगे, मिस हो जाएगा. बताया ना इसका तरीका. यू राइट एच, 8 बार एच लिखो, 8 बार टी लिखो. फिर 4 टाइम्स एच, 4 टाइम्स टी ऑल्टरनेटली. फिर 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स एच, ऐसे वर्टिकल लिख लो. एच 8 टाइम्स, 8. अब नेक्स्ट में 4 टाइम्स एच, 4 टाइम्स टी. उसके बाद 2 टाइम्स एच, 2 टाइम्स टी. और एंड में एच टी कर देना.
कौन सा? वही तुम्हारे से ये प्रॉब्लम होती है, जो आता है तो बोरिंग हो जाता है, और फिर वो मार्क्स कट जाते हैं। कौन सी चीज़ बार दोबारा बताना, हर हर क्वेश्चन डिफरेंट है। कौन सा? नहीं हो ना? करो 9 10 बोर्ड पे कर दो, डिफरेंट हो जाएगा। चलो, लो। तुम्हें फिजिक्स का पेपर शेयर नहीं किया मुझे, फिजिक्स वाला क्वेश्चन पेपर, फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर, स्कूल वाला। तुमने अपना पेपर फेंक दिया? तो क्वेश्चन विच वन? क्वेश्चन 10 में। 10th? हाँ। टॉस ट्वाइस द सेकंड थ्रो रिजल्ट्स इन अ टेल, अ डाई इज थ्रोन, ठीक तो है? अगर पहला थ्रो टेल हुआ तो, और बस, सेकंड टेल हुआ तो। अगर पहला टेल हुआ तो वो टेल रह जाएगा। नहीं, अगर पहला भी टेल है और दूसरा भी टेल है तो हम उसे काउंट करेंगे। तो वो इस इट सेज ना द सेकंड थ्रो रिजल्ट्स इन अ टेल, द डाई इज थ्रोन। लेकिन तो अगर फर्स्ट। सेकंड फर्स्ट थ्रो में टेल आ गया, ठीक है, और सेकंड में एच आ गया, तो टी एच तो वहीं स्टॉप। बट इफ यू हैव टी टी देन यू थ्रो अ डाइस। आ If the second throw is tail, then you throw a dice. Hmm. मेरा फिजिक्स पेपर पोस्टपोन हो गया। कब है अब? 8 दिसंबर। ओह, इसका मतलब दिस फिजिक्स पेपर विल हॉन्ट यू टिल 8th। या एंड बाकी माय केमिस्ट्री पेपर इज ऑन सेकंड, और उसके बाद कोई पेपर। Hmm. The number of outcomes will be elementary events. वो उन्होंने एसोसिएटेड इवेंट्स दे रखा होगा, नॉट एलिमेंट्री इवेंट्स, वो उनके सबसेट होते हैं। हाँ, अगर आइडेंटिकल मेंशन नहीं है तो टेक देम एज नंबर्ड, B1 B2 B3। हाँ। 11th का आंसर पीछे गलत दिया। क्या है पीछे? उन्होंने लिखा है। एक सेकेंड।
अगर आपने कॉइन को टॉस किया, हम्म। आपके पास हेड आया, तो हम्म। आप वापस कॉइन को टॉस किया और ठीक अब है। उस टॉस में टेल आया, तो फिर आपने एक डाइस को थ्रो किया। हम्म। कर दो थ्रो, क्या प्रॉब्लम है? तो आंसर नहीं मैच हो रहा। हाँ। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद कुछ नहीं करना है। क्या था ब्रो क्वेश्चन 11? क्या था, रीड करना क्वेश्चन। हम्म। तो एच आ गया। एच एच अगर आता है तो सेकंड टाइम में अगर हेड आता है देन आई रोल इट, आई इज इट? हाँ। आई थिंक अगर आपके पास हेड आता है तो आप उसको सेकंड टाइम टॉस करते हो, वरना ओके। हाँ। ठीक है। हाँ। टी आया तो डाइस थ्रो करोगे, तो दैट इज T1, T2, T6 हो गया। अगर हेड आता है तो कॉइन दोबारा से टॉस कर दिया। एच एच, एच टी। तुम कौन क्या बोल रही हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हो जाएंगे आउटकम्स, ठीक है। एंड उनके जो सबसेट्स बनेंगे दैल बी एसोसिएटेड इवेंट्स। A pair of Riley's dice is rolled. If outcome is double, then हाँ तब तुम्हें कॉइन टॉस करना, ठीक तो है? आ तो रहा है। अगर तुमने सपोज 1-1 आता है, तो उसके बाद तुम क्या करो, कॉइन टॉस कर रहे हो ना। एच आ गया, 1-1 टी आ गया, 2-2 एच आ गया, 2-2 टी आ गया 13th। हाँ। 3 टी एच, 3-3 टी, 4-4 एच, 4-4 टी, 5-5 एच, 5-5 टी, 6-6 एच, 6-6 टी। दिस इज इट। 12 हो गया, और 30 तुम्हारे वो हैं। 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, ये 30 होंगे ना। 2-1, 2-3, 2-4, 2-5, दीज आर 30, तो सारे टोटल मिला के वो हो गए। डबलेट नहीं आएगा इसमें। 13 क्वेश्चन। यस, डबलेट होता है ना ये। 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 लाइक दैट।
These events are total 42. बोलो. टोटल आउटकम और एलिमेंट्री इवेंट सेम चीज है. यस. लिख दिए सारे मैंने. डबलेट में तुम यू आर टॉसिंग ए क्वाइन. डबलेट में एच टी आ जाएगा, बाकी में नॉर्मल आएगा. क्वाइन टॉस करना है, अदरवाइज स्टॉप. हम्म. यस. वो सेम रहेगा. 30 + 12. 36 में 6 डबलेट आउट हट गई ना. सारा स्किप कर दो. 17 का कौन सा पार्ट? फोर्थ. अच्छा. The person is noting down the number of accidents along a busy highway during a year. तो हो सकता है कोई कोई एक्टिविटी वो ना हो, एक्सीडेंट जीरो. फिर हो सकता है एक एक्सीडेंट हो, फिर टू हो, थ्री हो. होल नंबर्स. 14 15 हो गया. 14 15 कर लिया. बोर्ड पे करो. ये तो स्किप कर रही है सारे. अच्छा. ठीक है, तो बोर्ड पे लिखवाऊंगा तुमसे. करो फिर. आगे करो लो. कौन सा? 3 कलर डाइस है. हाँ, तो कलर डाइस है ना. तो रेड का वन आएगा तो दिल बी डिफरेंट फ्रॉम वाइट का वन.
बस कलर, यू नीड टू एड द कलर इन द नंबर. हम्म. बताओ. हम्म. क्यों, हो सकता है कोई भी एक्सीडेंट ना हो. जीरो. होल नंबर्स, हाँ. जीरो वन, हाँ, राइट. सेट ऑफ होल. अद्विका, तुमने एक भी क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं किया आज. 16 करो. 15 तो कर दिया इसने. बोर्ड पे देख लो. हम्म. 17 में हम्म. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सब बोल रहे हैं। हाँ. बट मैंने पीछे 1 से शुरू किया। माफ कर दो, उनकी गलती हो गई उनसे. दे आर वेरी sadistic, दे वांट एक्सीडेंट टू हैपन. हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर ने बनाया. है. लिखा हुआ है 0 1 2. 1 लिखा है, 0 नहीं लिखा। तो हो सकता है वो इस है. सर, क्या एनआईसीएस वाली मैथ्स की बुक्स आपने लिखी है? नहीं. उसमें हाँ, जो भी ऐसा थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है उसमें लिखा है टफ नट कंफ्यूजिंग, और एक रोबोट बना है जो अपना सर पकड़ के। नहीं. करो. छोड़ दो. गुड. खुश हो. ठीक है. हो गए सारे. आगे करो. 20 to 40, 40 तक कर लो. नहीं, फिर तुम अगर पहले बोलते तुम लोग थोड़े से. नेक्स्ट पेज कर लो. ट- हाँ, तो 22 के बाद ही तो स्टार्ट हो रहे हैं. अरे तो वो कर लो ना, ऐड करो पेज. बस हो गया. कभी कभी तो आती है बेचारी क्लास में, तो उसको पता ही नहीं क्या होता है बोर्ड में. बोलने में क्या जा रहा है.
हम्म। 0 भी हो सकता है। 20 हो गए। हम्म। नहीं मतलब नहीं 20। 2-0। हम्म। छोड़ दो। हम्म। नहीं, इसमें तो नंबर, ये तो आइडेंटिकल था। इसमें नंबरिंग नहीं करना है। इसमें लिखा हुआ आइडेंटिकल है ना, नंबरिंग नहीं करना था तुम्हें। when it's mentioned identical you'll take them as W। हाँ, WB। हम्म। आइडेंटिकल है ना। हाँ दीक्षा, तुम क्या बोल रही हो? कौन सा कर रही हो क्वेश्चन? 20 के बाद करूँ? हाँ करना है, 40 तक करने सारे। हम्म। मतलब उसके जो सबसेट्स बनते हैं, कितने सबसेट बनेंगे अगर किसी सेट में दो आउटकम है? 2 रेस्ट टू पावर 2, 2 रेस्ट टू पावर 4। नंबर ऑफ सबस उन हाँ। कौन सा क्वेश्चन? जब तक तुम बोर्ड पे क्वेश्चन कर रही थी, इन लोगों ने जम कर दिए है। मैंने स्किप। बता दो ना इसको कौन से हैं। 17-18 तो कर दो बोर्ड पे। इसको बैठने नहीं देना है। इसको अगर बैठने दोगे तो बातें करेगी कि हम अपने आप से कि मैं बोर हो गई, ये बेकार क्वेश्चन है।
क्या तो कुछ बचा ही नहीं है। स्टैटिस्टिक्स कर लेंगे। ये चैप्टर और इतना बड़ा है। क्वेश्चंस करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ठीक। क्या हुआ दीक्षा, तुम क्या बोल रही हो? ये चैप्टर और कितना। अच्छा है। नहीं, अच्छा तो नहीं है। ये ट्वेल्थ में भी है। आई आई डिसाइडेड टू नेम्स। क्यों? See, it was initially thought of national, but it's not allowed. So, तो फिर क्या करते हैं? या तो नो इंस्टीट्यूट लिख देते, या नेम इंस्टीट्यूट, या नो वंस इंस्टीट्यूट। तो फिर नाइस ही था। तो मेरे सीए ने बोला कि अब क्या करें। अच्छा ठीक है, ये कर दो। चार्टर्ड अकाउंटेंट कम। हाँ, वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है ना। अनदर नेम आई थॉट वाज दिस, स्कोप। स्कूल फॉर, स्कूल ऑफ, क्या था, प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस ऐसा कुछ था। नेक्स्ट टाइम। कहाँ तक हो गया? 22 हो गया, 23rd हो गया। 23rd कर लिया। 21। हाँ छोड़ दो, 21 भी छोड़ दो। नहीं, 20 करना है। हम्म। चलो फिर बोर्ड पे कराता हूँ तुमसे। कौन सा किया तुमने? 23rd कर लिया। हम्म। हम्म। बीजी। यस। बीजी। जीजी। बीबी। बीबी। बस। हाँ। नंबर पूछा है उसने। नंबर ऑफ गर्ल्स। इसमें इसमें देखो, 0 गर्ल है।
इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें एक है, तो 0 1 2। इसमें क्या था, सम इज 9, सम इज 8। ओके। इट वॉन्ट। सेकंड के बी क्या था? अच्छा। तो तुम लोगों के टेस्ट में कौन से टॉपिक लेने हैं मुझे? तो इसी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कुछ बोला ही नहीं। मुझे बस दिखता है कि आप कुछ लिप सिंक कर रहे हो और फिर मुझे लगता है क्या? अरे ये सुना ही नहीं दे रहा तो मैं गाना गा रहा था। कौन सा? इवन। सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए बी, बी सी, बट ए एंड सी आर नॉट, है ना? एंड देन नॉट, नन ऑफ देम एग्जॉस्टिव। 24 कौन कर रहा है?
ग्रुप, नहीं नहीं नहीं, सिलेक्शन में ऑर्डर डजंट मैटर। सिलेक्शन है ना। आओ। हंसना एक बार। क्वेश्चन 26 में 26 में क्या? मैंने एक जगह पूछा है कि एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हैं और टोटल इवेंट्स कितने हैं। एलिमेंट्री तो 6 हो गई। नहीं, अ कॉइन इज टॉस्ड, एक ही अच्छा coin। सॉरी, 2 हो गई। और उनके जो सबसेट्स बनेंगे ना, देल बी 2 raised to power 2, 4। सो दोज विल बी एसोसिएटेड इवेंट्स। किसी भी सैंपल स्पेस में, एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स होंगे ना, दोज आर एलिमेंट्री इवेंट्स, एंड देन नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी associated events. तो when you toss a single coin, there are two outcomes, H and T। पर उनके कितने सबसेट बन सकते हैं? 2 raised to power 2। So those will be associated events। मतलब उनसे रिलेटेड इवेंट्स कितनी हो सकती हैं? इसका लॉजिक ये होता है कि किसी भी आउटकम का प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 नहीं हो सकता, लेस देन 0 नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा होता है कि अगर उसके जो आउटकम्स हैं उनके सभी की प्रोबेबिलिटी का सम कैन नॉट बी मोर देन 1। 24 में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, बिकॉज सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो सेलेक्ट करो ना। सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो B1 G1 इज सेम एज G1 B1। एटलीस्ट B1 B2, ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक। विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? तो ये क्या लिखा है तुमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का? ये सिंबल कौन सा है, कौन सा सिंबल लगा है? ये एंड का होता है ये? ये एंड होता है ऐसा? ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। हाँ। नहीं। A B R एक्सक्लूसिव हो गया ना? कुछ कॉमन नहीं है ना? हम्म। 27 में अगर एलिमेंट्री इवेंट्स 4 है तो एसोसिएटेड इवेंट्स 16 होने चाहिए। किस वाले में? 27। हम्म। और मैंने पीछे 14 दी, मतलब मैंने बैठ के काउंट किया तो 14। तो उन्होंने दो जो एलिमेंट्री थी ना, उनको काउंट करना था, वो भी होंगी। तो वो हो उस गए। टोटल तो वही होंगे 16 ही। उसमें से दो एलिमेंट्री हो गई। क्या हुआ? कहाँ रिपीटेड? सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं अब तो। हम्म। क्यों? नहीं, एंट्रेंस में तो आता है। प्रोबेबिलिटी आता है।
हाँ, प्रोबेबिलिटी तो डेफिनेटली दो क्वेश्चन आएंगे, एक या दो क्वेश्चन आते हैं हमेशा। पर वो तो मुश्किल वाला क्या देंगे। बोल? अच्छा, इंग्लिश इज फनी लैंग्वेज। अब कोई अमेरिकन होगा, कोई इंग्लिश ब्रिटिश होगी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसा है। किसने मेरे को बताया था? चलो, ये कॉलोनियल लैंग्वेज है, वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोल सकता हूँ मैं। हिंदी में गलत नहीं बोलूंगा मैं। हिंदी में सही बोलता हूँ। हिंदी पता नहीं। हाँ, तो वो हमारे भी शुरू हो गया ना, तो मैं इंजीनियरिंग भी शुरू हो गया। क्या बात कर रही हो? ऑल द इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर विल आर टॉट इन देयर रिस्पेक्ट। आज से 15 साल पहले, या इवन 10 years अगो, आईआईटी, नीट, देवर ओनली इन इंग्लिश। अब इस समय सारी लैंग्वेज में होता है नीट और जेई। अब वो भी नहीं, टीचिंग भी हो गया अब। हाँ, होगा, हो जाएगा धीरे धीरे। होगा, इट विल टेक टाइम, इट्स हैपनिंग। हिंदी तो होता है। हम्म, वो उसका रीजन यही था ना। ब्रिटिशर्स ने तो किया ना, सारा कॉलोनाइज कर दिया, ताकि जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम था ना टीचिंग का, उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। स्किल्स, हाँ, तो अब वापस आ रहा है धीरे धीरे वो। आएगा। दे स्कूल तो बेसिकली स्लेवरी हो गया ना, 15 साल को बच्चा अपने स्कूल में बंद, बाउंड्री में बंद कर दिया वो। उसके लाइफ के 15 years दे वेस्ट। इट्स अ बैड सिस्टम। स्कूल 15 साल स्कूल में बंद कर दिया उसको। मतलब बेसिकली फेमिनाइजिंग द स्टूडेंट्स, इवन द बॉयज ऑल्सो। अदरवाइज मेल का काम होता था वर्क करना, स्किल लर्न करना, काम करना, लड़ाई करना। सारा बंद हो गया सिस्टम। देखो, ब्रिटिशर्स वर वांटिंग कि हर आदमी इंडियन उनका स्लेव बन जाए। ये किया उन्होंने। स्लेव बना दिया सबको। सारा मनी ले गए हमारे से, 46 ट्रिलियन दे लूटेड फ्रॉम अस। अब क्या हुआ, 200 साल में खत्म हो गया पैसा। अमेरिका और ब्रिटिश, इनके पास अब पैसे नहीं है बिल्कुल भी। दे अगेन बिकम पुअर, बिकॉज जो भी उन्होंने पैसा हमसे लूटा था, 46 ट्रिलियन दे हैव वेस्ट, आई मीन स्पेंट। अब अगेन दे कमिंग बैक टू अस। ट्रेड ट्रेड जो चल रहा है ना, वो उसके। वो अब पिटाई मर रहे हैं ना वहाँ पे, रोजाना एक मरता है। वो बेवकूफ हैं। उनको पता नहीं क्या होने वाला है उनके साथ। उनके साथ क्या होने वाला है तुम्हें पता लग जाएगा विद इन 6 months। आवर कंट्री इज द बेस्ट। हो रहा है, एवरी सेकेंड डे यू विल रीड इन द न्यूज़पेपर, वन इंडियन इज किल्ड। किल्ड। तुम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते ना? तुम पढ़ते नहीं हो न्यूज़पेपर? अरे बहुत बुरा। सर आपकी आवाज चली गई। जॉब्स नहीं है वहाँ पे। नेक्स्ट कौन सा कर रहे थे अब? 24 हो गया, 25। 28 में उन्होंने 28 में, हाँ ठीक तो है। उन्होंने सेकंड पार्ट में एलिमेंट्री इवेंट पूछा है, और जब वो आंसर सिंपल इवेंट का दे रहे हैं। हाँ, वो एलिमेंट्री और सिंपल सेम ही हो रहा है, जिसमें एक मतलब आउटकम होता है ना। अच्छा। हम्म। जब तक तुम लोग ग्रेजुएट करोगे ना, तब तक ये होगा कि जो बाहर से पढ़ के आ रहा है उसको जॉब भी नहीं मिलेगा। करो ना, क्वेश्चन करो। 41st क्वेश्चन कर लो।
क्वेश्चन हो जाएंगे तो बोलते ही छोड़ देगी, बोर हो गई, मैं बोर हो गई। टफ आएगा तो आई कांट अंडरस्टैंड, इट्स वेरी बोरिंग। करो। वही, सम इज मल्टीपल ऑफ थ्री, तो सम इज मल्टीपल ऑफ थ्री का मतलब इट कुड बी 3, 6, 9, 12। तो थ्री जब होगा 2, 1, 1, 2 हो गया। 2, 1, 1, 2, दो ये हो गए। 1, 1 कैसे आएगा? हाँ तो ऐसे बना लो। बट आई थिंकिंग, मैं सोच रहा था कि पहले थ्री के बना लो, फिर 6 के, फिर 9 के, फिर 12 के। ठीक है। किसमें है? खुद से सोचो। 1 - none। इसमें लैंग्वेज इशू है थोड़ा सा। चलो, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नहीं। ठीक। कुछ नहीं होगा, तुम इसको वेन डायग्राम से कर लो, इजी हो जाएगा। ओके दिव्या। थैंक यू सर। बाय।